Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history, chapter Kings, Farmer and Town. My dear student, this chapter is very important. Why? Because in this chapter we studied about the topic the early state, Mahajanpad, then after Ganas, and when we read the Mahajanpadas, I told you about the 16th Mahajanpadas were 16 Mahajanpadas were flourished. During 6th century BC. Contemporary 10 Ganas also. तो ये 16th और 10th इनका अस्तित्व में दिखाई दिया और देन आफ्टर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अर्ली स्टेट के बारे में, अर्ली एम्पायर के बारे में, और यहीं से आपका चैप्टर शुरू करता है किसके बारे में, पियदसी के बारे में। पियदसी इट मीन्स अशोक। My dear student, this is your chapter. According to your chapter, first portion, it is explained about that Mahajanpada, 16 Mahajanpada, and the rise of Magad. And then after also the a little bit information that is given in your book about the Ganas, the oligarchical form of the government. Dear student, in this chapter, the main portion is the early empire, that is Mauryan Empire, which we are going to read. Ashok. In early empire means Mauryan Empire. Mauryan Empire कब से कब तक, इनका विकास कब से कब तक, इन सारी चीजों के बारे में हम आज विस्तार से बात करें। मौर्यन एम्पायर की स्थापना और फिर मौर्यन एम्पायर के पतन के बाद किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट दिखाई देता है। अगर आप देखिए मौर्यन एम्पायर के बाद तो कुषाण, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न, as like as in the southern part of India, the next empire, that was the Satvahan rulers, and in southern part of India the local chieftains were flourished. तो एक तरीके से पूरा का पूरा आपको इतिहास यहाँ पे दिखाई देता है। एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मौर्य साम्राज्य दिखाई देता है जो कब से 322 BC to 184 BC के आसपास तक
चलता है, एक लंबा काल। और इस मौर्यन एम्पायर में कुछ शासकों के नाम लाइक फर्स्ट चंद्रगुप्त, मौर्य, successor of Chandragupta Maurya was Bindusar, and then after third, that was Ashoka, 322 to 298 BC. 322 to 298 BC. Okay. Then after 298 to 273 BC, Bindusar was thrown on Magad, and then after 273 to 237 BC. But in your NCERT, a time was given. Ashokan period, I mean to say that the Ashokan time was not 273 to 237. इसकी जगह जो टाइम आपके बुक में दे रहा है एनसीईआरटी में, वो टाइम कहता है कि 272 to 231, 272 to 231 BC, ये टाइम. But there is no vast difference between that. If you will minutely observe about that time period of Ashoka, then you can easily understand that the historians, according to some evidence, what they feel that the time would be 273 BC to 237 BC, and some believe that the Ashokan time period that would be 272 to 231 BC. Matter is not the 2 or 3 years. Matter is that during that time a powerful emperor ruled on India and won what? एक युद्ध हुआ, कलिंग वार, a war which is very famous in the Indian history, that was Kalinga War. 261 BC. 261 BC द कलिंग वार है, ये हुआ 261 BC में कलिंग वार, और यहां से अशोक की पूरी जीवन ही बदल गई. माय डियर स्टूडेंट, if you will read your book, where clear given the information, the growth of Magad culminated in the emergence of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya, who was founded the empire 321 BC, extended control as for northwest as Afghanistan and Baluchistan, and his grandson Ashoka, arguably the most famous ruler of early India, conquered the Kalinga, present day the coastal Orissa. Finding out about the Mauryan history, then you will understand that this meaning of resources. What is the meaning of resources, and by which way we are aware that the Mauryan Empire, that was the very powerful empire who ruled on whole Indian continent, from Afghanistan to Bengal, from Kashmir to Karnataka, from Nepal to Gujarat, the very vast territory that was controlled by Mauryan Empire. Resources, that resource was very important thing. I mean to say that, suppose what I am telling you. Okay, let us type. Let us discuss about the fact which I am saying in your class with the help of the map and Mauryan Empire. आज देखते हैं उनके बारे में. चलिए मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कैसे और कब डेवलपमेंट. जैसे सपोज करिए, पहले एविडेंस पे नहीं, पहले हम देखते हैं कि एम्पायर कितनी बड़ी थी, कहाँ फैली थी, मौर्यन एम्पायर की सीमा विस्तार कहाँ था. तो जब मौर्यन एम्पायर की सीमा को देखेंगे
तो ये कितने बड़े क्षेत्र में रहा होगा? मैंने आपसे कहा कि अफगानिस्तान से लेकर के कर्नाटक तक, नेपाल से लेकर गुजरात तक, और बंगाल से लेके पूरा का पूरा ये रीजन मगध एम्पायर का पार्ट था. एज आई टोल्ड यू दैट कि उस समय जब अर्ली स्टेट फार्मिंग हो रही थी, ये फार्म हो रहे थे, एक नए तरीके से राज्य बन रहे थे, जनपद से महाजनपद और महाजनपदों से अर्ली स्टेट, अर्ली एम्पायर के रूप में कन्वर्ट हो रहे थे. तो इनमें किसका किसका योगदान रहा होगा? आई होप यू हैव रिमेंबर अबाउट दैट द मगध महाजनपद, राइज ऑफ द मगध, वेयर आई डिस्कस द पॉलिटिकल कॉजेस इन द राइज ऑफ मगध महाजनपद. And I taught you about the some political rulers, some dynasties like Haryank Vansh, Nag Vansh, Nand Vansh, Maurya Vansh, and I meant to say that अब जितनी भी डायनेस्टीज हमने पढ़ी, हरियंक डायनेस्टीज, नाग डायनेस्टीज, नंद डायनेस्टीज, तो इन लोगों के जो रूलर्स थे उन लोगों ने अर्ली स्टेट को फ्रेम करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया. दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वी कैन नॉट फॉरगेट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दैट रूलर्स. Okay, so let me explain the evidences that we know about that Mauryan Empire. तो अब आज बात करेंगे पहले मौर्यन एम्पायर पे. मौर्यन एम्पायर पे, और फिर मौर्यन एम्पायर के बाद हम उन चीजों को देखेंगे, उन सारी चीजों को जो हमें बताते हैं कि इस मौर्यन एम्पायर में कौन सा रूलर कितना शक्तिशाली हुआ, उसने अपने राज्य का एक्सपेंशन कहां तक किया और कौन महानतम था. इफ यू will observe that what I am saying in the class, that कौन महानतम था, who was the greatest ruler of this dynasty. No doubt to say that Chandragupta Maurya was the great conqueror. He acquired the area, a very vast area of the Indian continent. उसने वेस्टर्न से शुरू करके मगध को जीता और फिर कर्नाटक, श्रवण बेल गोला की पहाड़ियों पे जहां उसको संलेखना मिल रही है वहां उसने प्राण त्याग दिया. मतलब वहां तक के राज्य कभी मौर्यों की सीमा के अंतर्गत आते थे. और फिर उसके बाद महानतम शासक अशोक की बात करते हैं. चैप्टर में आपके अशोक से शुरू किया है. According to your syllabus, you have to read about that, the Dhamma of Ashoka, the life of Ashoka, and administration of Mauryan Empire during Ashoka and Chandragupta. I mean to say that according to Megasthenes and Kautilya, which type of administration that was running on the whole Mauryan Empire, it was explained in your book. This is your syllabus in Mauryan Empire, and evidence also. On which basis you have to know about that, these all information. So evidence, that is the very important, you have to read about that. आपको इसको पढ़ना है. चलिए एविडेंस बात करते हैं. मौर्यन एम्पायर के बारे में एविडेंस बात करते हैं. कैसे? रिसोर्स, what was the resource? We can categorize in three portions. First resource, text or literature. टेक्स्ट और लिटरेचर क्या क्या था इसमें? इसमें तो पहले
सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बौद्धिस्ट टेक्स्ट। बौद्धिस्ट टेक्स्ट में दिव्यावधान, दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, महापरिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र, दिव्यावधान, चूलनिदेश, and then after Jainism text, Jainism text, okay, in the Jainism text, Kalpa Sutra, Bhagavati Sutra, and in the Brahmanical text, ओके, ये लाइन मैं ऊपर लिखता हूं। इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थर्ड, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पुराण, epics and the contemporary book like Arthashastra, and the some other books, Mudra Rakshas, and then after a lot of books also. These are the textual evidence or what? लिटरेचर। ये तो एक पार्ट हुआ जो लिटरेचर हमें जानकारी देती है। इनके अलावा भी और भी सारे हैं बुक्स जो हमें जान, जैसे स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क। ओके, I will explain about that when I will discuss the next evidence. That was the first, the text or literature. Okay, नोटिंग आप इसको नोट कर सकते हैं। बौद्धिस्ट टेक्स्ट में दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, महापरिनिर्वाण सूत्र, दिव्यावधान, चूलनिदेश, and these type of others. Then after Brahmanical text, Jainism text, Kalpa Sutra, Bhagavati Sutra, and Brahmanical text, Puran and epics, Mahakavya, and then after contemporary Arthashastra and Mudra Rakshas. That is very important. So, my dear student, अगर आप इन चीजों के आधार पे बात करें तो ये वो सोर्स है, लिटरेचर है, जो इंडियन लिटरेचर है, जो इनके बारे में, मौर्यों के बारे में सूचना देते हैं। These are the Indian literature. They give us information about the Mauryan history, and on the basis of that we can what? Examine that what is true, what is false. On the analytical approach, we can
व्हाट, हम इतिहास के उन तत्वों को बाहर निकाल लेते हैं जो सही हो। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और जो ये भागवत, इन पुराणों में भी इनके कहानियों को विस्तार से दिया गया है। चलिए ये तो हुआ एक, आइए इसको मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला रिसोर्स क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं ब्राह्मण का। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। अब इसके बाद ये तो हुए टेस्ट। अब सेकेंड, क्या था, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या लेंगे, जो चीजें हमें पुरातत्व से मिली, दीज आर ऑल वी कैन कॉन्फिडेंट। अब एक एक को लेते हैं। पहले इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस में रॉक कट इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, केव इंस्क्रिप्शंस, यहां पे रॉक, पिलर और फिर केव, तीन पार्ट में हमने इंस्क्रिप्शंस को बांटा। देन आफ्टर कॉइन्स, ब्रोंज, पेपर, कहते हैं कुछ ताम्र पत्र, देन आफ्टर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल एविडेंस, लाइक व्हाट, द रॉयल पैलेसेस, चंद्रगुप्त का पैलेस मिला कुम्भलहार से, लाइक जो भवन, बिल्डिंग्स आपके बुक में ही आई थिंक, इफ यू विल ऑब्जर्व देन यू कैन इजीली फाइंड व्हाट द स्ट्रक्चर। अब याद होगा मैंने आपको बताया था आपकी क्लास में कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद इट मीन्स पैलेसेस, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद सूसा और एकबतना के महलों से भी अधिक भव्य और खूबसूरत थे। इस बात का उल्लेख करता है एक इतिहासकार। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट वहां पे भी चरम पे था, मॉडर्न एम्पायर में। और ये तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, कि हम जान सकते हैं ताम्रपत्र के द्वारा, पुरातात्विक जो हमारे पास एक्सकवेशन से मिली है आर्टिफैक्ट्स हैं, पॉटरी हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं पॉटरी, artifacts and some other domestic goods, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं किसमें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में। अब थॉट की बात करते हैं। आई होप कि थॉट आपको आराम से दिखेगा, आप थॉट को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो थॉट में हम जिन चीजों की बात करेंगे, देखिए किन चीजों की। थॉट में हम कहते हैं फॉरेन
travelers account and Greek writers evidence यहां पे ग्रीक राइटर्स की हम बात कर रहे हैं। मेगास्थनीज, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी, टॉलमी, अनेसिक्रिटस, अरेस्टिबुलस, यूटीसी। इतने सारे ग्रीक राइटर्स के बारे में स्पेशली एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें देखना है, वो है मेगास्थनीज। I hope you are getting understand that what I am telling you. These are the evidences. On the basis of that, we can easily understand about the Mauryan Empire. अब Mauryan Empire का एरिया देखिए कहां से कहां, एम्पायर कहां से कहां तक फैला। अगर आप देखें वर्तमान में ओके, दिस इज प्रेजेंट इंडियन मैप, ये भारत का वर्तमान मैप है। इसको और आगे बढ़ाइए, इनको और आगे बढ़ाइए। ये पूरा का पूरा इलाका अफगानिस्तान का और कर्नाटक तक के क्षेत्रों को ले जाइए, पूरा बंगाल, पूरा नेपाल, पूरा जम्मू कश्मीर। दीज आर द मौर्यन एम्पायर। अब इनको मैं आपको दिखाता हूं। I hope on the basis of that map, you can easily understand that there is a vast territory that was controlled by the Mauryan Empire. एक बड़ा साम्राज्य from Afghanistan. It means area, Arakosia, Jedrosia, Kandahar, Peloponnese, and thereafter you have to come the Devpatan, Kashmir. These area also controlled by them. And the Karnataka, Shravanbelgola, the Bengal, where the Tamilipti, this whole area was controlled by the Mughal Empire. अब इन क्षेत्रों के नाम लिखिए। मैं कुछ जो evidence, on the basis of evidence, I want to tell you about that the area that was controlled by the British Empire. अब देखिए क्या क्या है।
मैं अब यहां देखता हूं, एरिया अराकोसिया, हेरात, सॉरी एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया एंड कांधार, ये किसमें आए? ये अफगानिस्तान है। वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र है। फर्स्ट, सेकेंड तामिलित्ती, तामिलित्ती, बंगाल, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, कहता है कि क्या था? गिरनार। इंस्क्रिप्शंस में एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, रुद्रा, रुद्रदामन, जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब ये हुआ गिरनार, इट मीन्स गुजरात। एंड फोर्थ, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। एंड अदर 5, श्रीनगर, कश्मीर, देवपाटन, नेपाल। तो ये दैट इज द टेरिटरी। अब आप इन चीजों के आधार पे व्हाट वी रीड टुडे, माय डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट I try to inform you about that the evidences, and I also try to giving you some information about that the Mauryan territory, Mauryan empire. In my next class I will discuss all. So in my next class we will discuss about the Mauryan empire, that is the territory of the Mauryan empire. We will discuss there the provinces in the Mauryan Empire, how the Mauryan Empire they administrate on whole Indian continent area, what was Ashoka Dham, Mauryan administration, and about Ashoka also. These all points we will discuss in my next class. आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care.